Hello everyone, this is Rishikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. So in the last lecture, we are discussed about the classification of resistors, and in today's session, we will cover the color coding of resistors. So prerequisite. Before start our today's topic, first of all, we revise our last lecture. So in the last lecture, we covered the classification of resistors, then the specifications of resistors, then working principles of resistor, then applications of resistor. Now in today's session we will cover the types of resistor, color codes, then color coding with 4 bands, then color coding with 3 bands, and examples based on resistor color code. So before start our today's topic, first of all we discuss about the learning outcomes. So the learning outcomes of our today's session are: you will able to know the different types of resistor color codes. Then you will able to understand the color coding with 4 bands. Then you will able to understand the color coding with 3 bands. So these are the learning outcomes of our today's session. So color coding of resistors. So the resistance value, tolerance and wattage rating are generally printed onto the body of the resistor as numbers or letters if the resistor body is big enough to read what has been printed on it. तो जो हमारा रेजिस्टर होता है वो अगर बड़े साइज में अगर होता है तो उसी के ऊपर, उसी के बॉडी के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, टॉलरेंस और वैटेज रेटिंग, ये सब रेटिंग उसमें प्रिंटेड होती है. बट the 1/4 watt carbon or film type resistors are too small in size, hence it is not possible to print all these information on their body. अब सपोज जैसे कि हमारा फिल्म टाइप रेजिस्टर है, ये बहुत ही स्मॉल है, तो इसके ऊपर हम ये सब रेटिंग नहीं डाल सकते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इसके लिए क्या होता है कि हमें उसका जो कलर कोडिंग होता है उसके हिसाब से हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी होती है. तो वो कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं हम, मतलब वो पर्टिकुलर रजिस्टर कितने वैटेज का है, कितने रेटिंग का है, वो हम यूजिंग कलर कोडिंग से निकाल सकते हैं. सो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स. To overcome this problem, small resistors are colored painted bands to indicate their value and tolerance. तो जो स्मॉल रेजिस्टर्स होते हैं उसको उसके ऊपर प्रिंटेड होता है कलर बैंड, तो वो कलर बैंड के हिसाब से हम उसकी वैल्यू और उसका टॉलरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. These colored painted bands produce a system of identification which is called as register color code. तो इस प्रिंटिंग को, जो प्रिंटिंग होती है रजिस्टर के ऊपर, उस सिस्टम को, उस आइडेंटिफिकेशन वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर कलर कोड. So types of register color codes. Depending on the number of color band used, the register color codes can be classified into the following types. First is 3 band color code. Second is 4 band color code. Third is 5 band color code. Fourth is 6 band color code. So a register color code markings are always read one band at a time starting from left to right. A larger width tolerance band is oriented on the right side indicating the tolerance of the resistance value. तो जो हमारा रेजिस्टर होता है जिसके ऊपर पेंटेड रहता है कलर कोड, तो उस पर जो बड़े टाइप की, बड़े विड्थ की जो पेंटिंग होती है उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस बैंड. और जो स्मॉल बैंड्स होते हैं, जैसे वहाँ पे 3 बैंड्स होंगे, 4 बैंड्स होंगे, 5 बैंड्स होंगे, 6 बैंड्स होंगे, और इसमें से जो टॉलरेंस बैंड बिग साइज का होता है वो राइट साइड में होता है, तो वो टॉलरेंस बैंड होता है. सो कलर कोडिंग विथ 4 बैंड्स. So this is the resistor having 4 bands, band A, band B, band C, and this is tolerance band B, D. तो ये जो टॉलरेंस बैंड है ये इन तीनों बैंड की विड्थ से इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं हम टॉलरेंस बैंड. सो दिस कैपिटल ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट, कैपिटल बी रिप्रेजेंट द सेकंड डिजिट, एंड कैपिटल सी रिप्रेजेंट द मल्टीप्लायर. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रीडिंग. कहाँ से रीड करेंगे? लेफ्ट टू राइट. सो फिगर शोज अ फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर.
A, B and C are three color bands placed close to each other on one side of the resistor. तो बैंड A, बैंड B, बैंड C ये लेफ्ट साइड में बैंड्स दिए हैं और राइट साइड में हमारा बैंड D है जिसकी विड्थ बैंड A, B, C से ज़्यादा है. कैपिटल D इज टॉलरेंस बैंड विच इज यूजुअली ऑफ आइदर गोल्डन और सिल्वर कलर. तो जनरली क्या होता है कि ये जो टॉलरेंस बैंड होता है जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है ये आइदर गोल्डन का होता है या सिल्वर कलर का होता है. Then the tolerance band is placed on the right hand side slightly away from the other color bands. मतलब उस जो ABC कलर बैंड है उसमें जो स्पेसिंग है वो कॉमन है, बट उसके अलावा जो राइट साइड में जो जाटी वाली जो पेंटिंग है वो और ये ABC इनमें से जो गैप है ये ज़्यादा होती है. The typical resistor tolerances for film resistors range from 1% to 10%. तो कुछ ऐसे टिपिकल रेजिस्टर होते हैं जिसका टॉलरेंस जैसे कि फिल्म रेजिस्टर हो गया वो उसकी रेंज क्या होगी फ्रॉम 1% टू 10%. ये होगी टॉलरेंस फॉर टिपिकल रेजिस्टर. कौन से? फिल्म रेजिस्टर. बट द कार्बन रेजिस्टर्स हैव अ टॉलरेंस ऑफ अप टू 20%. ऑन द अदर हैंड क्या होगा जब कार्बन रेजिस्टर्स होंगे उसका टॉलरेंस क्या रहेगा अप टू 20%. सो मेजरमेंट इज डन एज फॉलोज. ये हो गया फर्स्ट बैंड हमारा उसको डिजिट बोलेंगे, सेकंड बैंड उसको बोलेंगे डिजिट, देन जो थर्ड बैंड होता है वो मल्टीप्लायर होता है और फोर्थ बैंड तो टॉलरेंस हो गया. तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट. नाउ कलर कोडिंग इंफॉर्मेशन. सो कलर बैंड दिए है, देन दिस इज कलर बैंड, दिस इज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बोलेंगे और ये टॉलरेंस है इन केस ऑफ परसेंटेज. तो जैसे कि ब्लैक ब्राउन रेड ये कलर बैंड दिए है उसकी वैल्यू दी है मल्टीप्लायर बोल देंगे हम जिसको और ये परसेंटेज दिए है. तो ब्लैक का 0 है मल्टीप्लायर, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू 6, वायलेट इज 7, ग्रे हैज़ 8, वाइट हैज़ 9. और जो गोल्डन और सिल्वर है वो क्या होते हैं टॉलरेंस होते हैं तो उसका मल्टीप्लायर या वैल्यू नहीं रहेगा. देन टॉलरेंस इन केस इन परसेंटेज तो ब्लैक का डैश है, ब्राउन का 1%, रेड का 2%, देन ग्रीन का 0.5%, ब्लू का 0.25%, देन वायोलेट इज 1.1%, देन ग्रे इज 0.01% एंड गोल्डन इज 5% एंड लास्ट सिल्वर इज 10%. तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे. If the sequence of the color rings on a certain fixed value resistor is red, red, orange, golden, then calculate its value. तो अभी इसमें देखो हमारे पास क्या निकालना है, इसमें वैल्यू निकालनी है रेजिस्टर की. तो कलर बैंड दिया है, रेड है, देन ऑरेंज, देन गोल्डन. तो ये जो रेड है पहला रेड उसकी वैल्यू एज पर द टेबल इज 2, देन रेड का अगेन 2, ऑरेंज का जो मल्टीप्लायर बोलते हैं उसका है 10⁻³ और जो गोल्डन है वो है 5%. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज 22 किलो ओहम. 22 किलो ओम कैसे आया, देखो ये 2 है और ये 2 है, सो ये हो गया 22 किलो मतलब 1000, सो 22 इंटू 1000 दैट इज 22,000 और 22 इंटू 10⁻³ हो गया और ये गोल्डन 5% टॉलरेंस एंड द टॉलरेंस इज 5%. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जिसमें से हम कलर बैंड के ऊपर से हमने वैल्यू निकाली है रेजिस्टर की. Then color coding with 3 bands. If a resistor has only 3 color bands and no fourth tolerance band, then its value is calculated same as for the 4 band color code and the tolerance will be 20% default. अब जैसे कि 3 कलर बैंड्स का जो रेजिस्टर है उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो 3 कलर बैंड्स में फोर्थ अगर बैंड दिया नहीं है तो उसका जो टॉलरेंस बैंड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेना पड़ता है 20%. ठीक है, मतलब 3 कलर बैंड से तो उसका
टॉलरेंस वैल्यू रहेगा बाय डिफॉल्ट 20%। अगर 4 है तो 4th वाला जो टॉलरेंस है उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेंगी एज पर द टेबल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, if the sequence of the color rings on a certain fixed value register is yellow, violet, red, then find the value and the tolerance। अभी देखो ये एग्जांपल में 3 ही बैंड दिए हैं, येलो है, वायोलेट है, रेड है, और उसकी वैल्यू और टॉलरेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, येलो की वैल्यू रहेंगी 4, वायोलेट की वैल्यू है 7 और रेड का है 10 to the power 2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज, क्या हो गया ये 47 इंटू 10 to the power 2, 10 to the power 2 मतलब 100, तो 4700 हो गया। अब के में कैसे बोलेंगे उसको, 4.7 किलो ओम। अब इसमें फोर्थ बैंड दिया नहीं है टॉलरेंस का, तो जिसमें टॉलरेंस बैंड नहीं दिया रहता उसमें डिफॉल्ट 20% टॉलरेंस लेना पड़ता है। सो एज द फोर्थ बैंड इज absent द टॉलरेंस विल बी 20% एज पर द रूल। Then next example, give the color code for the resistor 100 ohm 10%। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या निकालना है, कलर कोड निकालना है रेजिस्टर का जिसका रेजिस्टेंस है, वैल्यू है 100 ओहम और टॉलरेंस है 10%। सो सॉल्यूशन में अब देखो 1 है, 1 का कलर है ब्राउन, देन 0 का ब्लैक, अगेन 0 का ब्लैक और 10% है सिल्वर। देयरफॉर द कलर कोड फॉर द रेजिस्टर 100 ओहम 10% इज, क्या हो गया, ब्राउन, ब्लैक और सिल्वर। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल में अगर हमें रजिस्टर की वैल्यू निकालनी आती है तो वाइस वर्सा या रिवर्सली हमें उसके कलर बैंड भी निकालने आने चाहिए। देन गिव द कलर कोड फॉर द रजिस्टर 47K 5%। सो सॉल्यूशन 47K प्लस माइनस 5% ये होता है टॉलरेंस। सो इक्वल टू क्या रहेगा 47 इंटू 10 to the power 3। अब किलो मतलब 10 to the power 3 दैट इज 1000 और प्लस माइनस 5%। तो अभी 47 में 4 लेंगे, 4 की वैल्यू क्या है, 4 किसकी वैल्यू है, येलो की, 7 किसकी वैल्यू है, वायोलेट की, देन 10 to the power 3 किसकी वैल्यू है, ऑरेंज की, और 5% इज गोल्ड। देयरफॉर द कलर कोड फॉर द रजिस्टर 47K 5% इज, क्या हो गया, येलो, वायोलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड। देन प्रोग्राम आउटकम्स। So PO1 is basic knowledge, so PO1 is mapped. Then PO3 that is experiments and practice is also mapped. Then PO8 that is individual and teamwork is also mapped. And the last is PO10 that is lifelong learning. This PO is also mapped. So my dear student, we will summarize our lecture. Today we have learned the types of register codes, color coding with 4 bands, then color coding with 3 bands, and finally examples based on register color code। तो ये सभी टॉपिक्स हमने आज के सेशन में कंप्लीट किए। So my dear student, hopefully you enjoy the today's session. Thank you. In the next class we will going to learn about the variable registers. Thank you.